Hello, everyone. So, today on World Glaucoma Awareness Week, I, Vinay Daima, studying MPH from GD Goenka University, here sitting with Dr. Pranab Prakash Hello. sir, who is HOD and public health specialist. So, today we will discuss about glaucoma. So, let's start our discussion with our first question. What is glaucoma, sir, and why it is so significant? Wonderful. First of all, I would like to congratulate you and your team for conducting this awareness program. All through, we are experiencing that the conditions of people who are victims of glaucoma, the number is continuously rising, Yes. while the presentation is still getting late. So, for your audience, I would like to explain that glaucoma is a condition affecting eyes where the pressure of eye gets increased. Now your audience can ask, what is the pressure of eye? To explain further, all you can see visually the eye, it's just a small portion of eye. But behind what is visually seen is a ball-like structure. And our eye, having a ball-like structure, is filled with a fluid. The fluid is called vitreous fluid. Now, this fluid need to be in right quantity. It is continuously at one side getting made, and on the other side, the older fluid is being absorbed. So there is a continuous mechanism of one side new fluid getting made, another side fluid being absorbed. In some circumstances, because of multiple conditions, this metabolism gets disturbed. When I say disturbed, that means the removal of liquid becomes either slow or absolutely blocked. So new fluid is coming in while older fluid is not getting out. This can lead to accumulation of fluid and finally the intraocular pressure, that is the pressure inside the wall of eyes. आंखों के जो बॉल है उसके अंदर की दीवार के ऊपर फ्लूइड से बन रहा प्रेशर वो बढ़ जाता है और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को आई में पेन होता है, विजन की लॉस होती है, कई बार जी मितलाना यानी कि चक्कर आना, आंखों के नीचे अंधेरा आना, इस तरह के सिम्टम भी आते हैं। तो इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए, दैट इज if you have any trouble, any pain related with eyes, you must visit your eye physician, that is ophthalmologist. So, a question may arise in our public that कौन सा स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो जिसमें ग्लाइकोमा हो सकता है? Right. So, if we talk from the perspective of public health, there are multiple demographic groups which are vulnerable. अगर हम रेस की बात करें तो अफ्रीकन मूल के लोगों में ये कई बार ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ ही हिस्पैनिक ग्रुप के लोगों में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। उम्र की बात करें तो मिडिलर एज ग्रुप में यानी कि 45 से लेके अबव एज ग्रुप में इसके विक्टिम्स ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि एज और एथनिसिटी यानी कि नस्ल, इसके अलावा भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज जो कि पूरी तरह से मैनेज नहीं हो रखी है, यानी कि जिन लोगों के ब्लड शुगर की मात्रा लगातार बढ़ी हुई है, जिन्हें दवाइयाँ लेने के बाद भी पूरी तरह से रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं हो रही, यानी कि डिस्पाइट टेकिंग कॉन्टिन्यूअस डोजेज एंड रेगुलर डोजेज ऑफ मेडिकेशन अगेंस्ट डायबिटीज, if your blood sugar is not managed or your blood pressure is not managed, then chances are that you can develop glaucoma. And one more thing I would like to discuss from your channel to the audience is that all the people who have got their intraocular
प्रेशर रेज्ड, यानी कि सारे लोग जिनके इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, सारे के सारे लोगों को ग्लाकोमा की समस्या नहीं होती। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका इंट्राऑकुलर बढ़ा है लेकिन उनको ग्लाकोमा की समस्या अभी नहीं है। लेकिन जब भी इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमें अपनी नजदीकी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलके अपनी समय समय पर जांच करवानी चाहिए। Okay. And are there any specific ways to detect the glaucoma at early stage? Right. As we discussed, ग्लाकोमा इज अ कंडीशन जब भी कि आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अर्ली एज में भी जाके हम प्रेशर को मेजर करवा सकते हैं, इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेजर करवा सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही जब भी हम इंट्राऑकुलर प्रेशर और उससे रिलेटेड ग्लाकोमा की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं विजन लॉस की भी। तो विजन की भी जांच हम अपने नजदीकी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। फिर जैसा हमने कहा कि ड्रेनेज मैकेनिज्म जो आंख के अंदर विट्रियस फ्लूइड की मैनेजमेंट का हिस्सा होती है, उसकी भी इंस्पेक्शन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं। तो यानी कि हमारे रेटिना की जांच की जा सकती है विजन के बारे में पता लगाने के लिए, क्या ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो रहा है या नहीं। हम विजन फील्ड की जांच कर सकते हैं, यानी कि पूरी दूर जहां तक हमें दिख रहा है, क्या उचित दिख रहा है या उसमें कोई कमी आना शुरू हो गई है। साथ साथ हम जांच कर सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, आईज के और आई के प्रेशर की। ये 4-5 तरीके हैं जिसके थ्रू हम लगातार जांच करके अर्ली ऑन ग्लाकोमा का पता लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ ही अगर किसी को ग्लाकोमा की समस्या हो रही हो तो मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि कभी ये ज्यादा ना बढ़ने पाए। So now, so obvious question would be the treatment. So once if the glaucoma is diagnosed, so what are the treatments option available? Right. So as we discussed, glaucoma is a metabolic disorder. That means body is not able to function properly. Some of the very vital function, the function of the fluid management in eye is not up to the mark. Now in these conditions, we can give medication which can be given in eye drop format, or we can also perform surgery. Surgery is also a way through which we can create drainage where the fluid can be drained, and some other mechanism, like if there is some challenge with retina, some other processes can be followed. So in summary, इसका मैनेजमेंट संभव है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि निराश होने की बात नहीं है। आज के मॉडर्न इक्विपमेंट के सहारे और सर्जिकल प्रोसेस के सहारे ये संभव है कि इसका हम एक बेहतर मैनेजमेंट कर सकें। लेकिन इसके लिए जरूरी है, और ये बात मैं बार बार रेखांकित करूंगा, कि अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से हम लगातार टच में रहें, कभी भी लापरवाही ना बरतें और जांच में अनियमितता ना आने दें। You need not be irregular with your preventive checkup. You need to have a regular annual checkup even if you are healthy. If you are having glaucoma, then the frequency of checkups should increase every 3 months or as directed by your ophthalmologist. Sure. And like on this glaucoma awareness week, so हमारी पब्लिक जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती है टू प्रिवेंट दिस ग्लाकोमा? उनका क्या रोल रहेगा? Wonderful question. I am really thankful to you for asking this question, and not just glaucoma, but rather regarding every health and disease condition. I would like to appeal that health is matter of everyone. हेल्थ सिर्फ डॉक्टर का नहीं है, हेल्थ सिर्फ नर्सेज के डिस्कशन का विषय नहीं है, पैरामेडिक के डिस्कशन का विषय नहीं है। हेल्थ सबके लिए जरूरी है, बिकॉज हेल्थ इज द फाउंडेशन फॉर द बॉडी, एंड वी नीड हेल्दी बॉडी टू परफॉर्म आवर डिफरेंट ह्यूमन रोल्स, बी इट फैमिली रोल, इंडिविजुअल रोल, कल्चरल रोल, पॉलिटिकल रोल, प्रोफेशनल रोल। वैसे में
स्वास्थ्य के लिए क्या उचित कदम उठाने हैं, इसको हमें सिर्फ डॉक्टर के दायरे से बाहर लाके एक मुहिम, एक मूवमेंट बनाना होगा, जिसमें कि सारे यंग और एनर्जेटिक लोगों के हेल्प की जरूरत है स्टार्ट करने की। पूरी दुनिया में देखा गया है कि कोई भी आंदोलन स्टार्ट होता है युवाओं के साथ। तो सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे युवा आगे आए और पब्लिक हेल्थ में हम अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम, पूरे साल हमारी कैलेंडर पैक्ड होती है। अभी हमने पिछले दिनों किडनी अवेयरनेस प्रोग्राम किया, अभी आप इतना अच्छा ग्लोकोमा के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारे युवाओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए, खुद को एजुकेट करना चाहिए और इसके बाद अपनी कम्युनिटी में भी इस एजुकेशन को लेके आना चाहिए, जिससे अर्ली डिटेक्शन हम कर सकें और जो केसेस आ जाती हैं उनको उचित इलाज मिल सके। बिकॉज आपको जान के दुख होगा कि अभी भी दुनिया में ग्लोकोमा इज सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। कैटरैक्ट के बाद सबसे बड़ा कॉज है ब्लाइंडनेस का, और उनमें से आधा से ज्यादा लोगों की आईज बचाई जा सकती है अगर हम नियमित इलाज करवाएं और नियमित चेकअप करवाएं। सो कॉन्टिन्यूअस ट्रीटमेंट एंड रेगुलर चेकअप, ये दो सूत्र हैं जिसके बारे में युवाओं को आज जाके कॉलेज में, कैंपस में, घरों में, समाज में हर जगह चर्चा करनी चाहिए, और किसी भी दूसरी चीज के जैसे युवाओं को ही इसमें पहल करनी चाहिए। Sure, sir. And what are the, your conclusion remark on this awareness week for glaucoma? Yes, so through your channel, I would like to finally say two things. Everyone, till the point you have even healthy eyes, you should get your eyes checked up regularly. एक छोटी सी प्रिवेंशन भी कभी जाके आपके आई साइट के लॉस को भी बचा सकती है, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो ना तो हमें डरना है और ना ही हमें लापरवाही करनी है। अगर कोई भी बीमारी है उसका उचित इलाज होना चाहिए, और उचित इलाज उन लोगों के पास है जिनके पास योग्यता है, जिनके पास तजुर्बा है। तो हमें डॉक्टर्स के पास जाके बीमारी का समुचित प्रबंधन करवाना चाहिए, जिससे कि हम बड़ी समस्या बनने से रोके, ग्लोकोमा को ब्लाइंडनेस में बदलने से रोक सके, और ये संभव है। तो आइए हम सब लोग मिलके आज ये एक प्रण लें कि पब्लिक हेल्थ के अंदर सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और स्वास्थ्य को सबका मुद्दा बनाएंगे और स्वास्थ्य को एक सामाजिक मुहिम बनाएंगे। Thank you so much, sir, to give us such a wonderful knowledge. Thank you. Thank you.